My dear students, welcome to Padhai Online, and I am Dr. Shikha Khandelwal. Today I am going to teach you about the concept of direct and indirect proportion with the examples from your daily life. And that chapter is taken from your NCERT book, Class 8th. And trust me, it's going to be super easy and fun. Let's get started. What is a ratio? So ratio is a relationship between two quantities of the same kind with the same unit, and it is obtained by dividing the first quantity by the second. So in this, if we take an example, so A is to B. A is the first quantity of, we can say, first term, which is known as antecedent, and B is another quantity which is consequent. And there is a symbol which is used as colon, and this is also stands for is to. Okay, so A is to B. So it can also be written as A upon B. So what is ratio? जो ये है वो two quantities हम लेंगे same kind की और same unit की. Example like ratios of green apples to red apples. So what is the ratio of green apples to red apples? So कितने apple दिख रहे हैं आपको? Green 3. And how many are red apples? There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ratio क्या हुआ? 3:9. 3 means green apple, 9 means red apples. Take an example. Distribute 40 sweets between Raj and Simran in the ratio of 2:3. Means you have to divide this 40 sweets in the ratio of 2:3 between Raj and Simran. So what is the first step we'll do? What is the first step? Add the number of parts. Number of parts means 2:3 is how many total parts are there? Find the first part and then second parts. Okay. So अगर हम देखेंगे तो number of parts total कितने हुए? 2:3 में 2 + 3 5. अगर हम first part means राज को अगर देखेंगे कितनी sweets मिली तो 40 into 2/5 equals to 16 sweets, and second part means सिमरन को कितनी sweets मिली तो will calculate 40 into 3/5 equals to 24. So 16 sweets 2:3 के रेशियो में राज को मिले हैं एंड 24 जो है सिमरन को मिले. अगर हमें क्रॉस चेक करना है तो व्हाट विल डू, विल ऐड 16 + 24, दैट विल कम 40. तो ये हमारा क्रॉस चेक होता है. सो 2:3 के रेशियोज में हमने क्या करा, 40 स्वीट्स को डिवाइड किया. तो रेशियो कम किसका था? राज का. तो स्वीट्स किसको कम मिलेंगी? राज को. तो 16 स्वीट्स राज को मिली एंड 24 सिमरन को. नाउ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेशियोज. सिंप्लीफाई कैसे करना है? मींस हमें जो टर्म है उसको कट करना है विद द सिंपल स्मॉलेस्ट नंबर. लाइक 3/6 है एंड 9 12 है. अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 की टेबल में 6 आता है एंड 9 and 12 बोथ कम्स इन 3 टेबल, राइट? 3/6 अगेन और 5/10. 5/10 5 की टेबल में आता है. ओके, तो सिंप्लीफाई करा तो क्या है हमारे पास आंसर? 1/2 एंड 3/4. और इस सेकंड नंबर क्वेश्चन में 1/2 एंड 1/2. सो इसका क्या मतलब हुआ? आपने कुछ नोटिस किया कि ये जो दोनों रेशियोज है जब हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो वो रेशियो सेम नहीं था, लेकिन जब इस टर्म को हमने इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई किया तो रेशियो सेम आया. तो अगर रेशियो सेम आता है तो क्या होगा? सो रेशियोज अगर सेम आता है तो they are said to be in proportion. So proportion is a way to express that two ratios are equal. Okay, so if the simplest form of A is to B is equal to, we can say equal to simplest form of C is to D, then we can say that A is to B are in proportion to C is to D. And it can also be written as this. This is also is as. So proportion का हमने लिखा था is to, A is to B, and in proportion we'll say A is to B is as C is to D. सेम है. ओके, तो ये सिंबल है जो हम यूज करते हैं और इसको रीड कैसे करते हैं? is as. So it can be written as A is to D is as C is to D. ओके, अब नाउ व्हाट इज एक्सट्रीम एंड मीन्स टर्म? मीन्स टर्म जो है, मीन्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज है प्रोपोर्शन की जो मिडल में है, मिडल टर्म्स है. एंड एक्सट्रीम्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज प्रोपोर्शन की जो दूर होते हैं, विच आर एट एंड्स. सो A is to B को जब हम D को मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा? B into C के. सो व्हेन द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, व्हेन द नंबर्स आर इन like A is to B and C is to D are in proportion, so the product of means is equal to the product of extremes.
ठीक है. सो अगर हम वेरीफाई करें, लेट्स से एन एग्जांपल 18:45 and 2:5, are they in proportion? Just calculate. Yes, calculate it. सो सिंपल टर्म्स में अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बट इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होंगे? क्वेश्चन क्या पूछा? आर दे इन प्रोपोर्शन? मींस 18 into 5 or 45 into 2 are the products of their both are equal? Yes, 18 to 5 is 90 and 45 into 2 is 90. Means product of means is equal to product of extremes. So the ratios is 18:5 and 2:5 are in proportion. So समझ आया कैसे we have to check whether they are in proportion or not? So one question आपके लिए है, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप करके बताना. 40:36 and 10:12 are they in proportion? I will wait for your reply. Now move to next. So there are two types of proportion. First is direct proportion and second is indirect proportion. They can also refer to as direct variation and indirect variation. Okay, so what is direct proportion or direct variation? There are two quantities because proportions और ratios में क्या होता है, हमने अभी डिस्कस किया, दो quantities होती है. So in direct proportion, if there is an increase in one quantity, which also leads to increase in other quantity, and if there is a decrease in one quantity, that also leads to a decrease in other quantity. अगर हम देखें, अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, वन डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो रही है. एग्जांपल्स अगर हम देखें कि अगर हमें आइसक्रीम्स बॉट करनी है तो नंबर ऑफ आइसक्रीम्स एंड मनी स्पेंड, आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन? यस. जितनी हम आइसक्रीम्स बाय करेंगे उतना ही मनी ज्यादा होगा. Another example, number of books and weight of the bag, area of land and its cost. In all those cases, if there is an increase in first quantity, there will be an increase in second quantity. Now come to inverse proportion. Inverse proportion क्या होता है कि अगर एक quantity increase हो रही है तो दूसरी decrease हो रही है, अगर ये decrease हो रही है तो this quantity is increasing. अगर हम example देखें तो जैसे freshness of vegetables and time. Freshness क्या है? Time फ्रेश जो वेजिटेबल्स का है, जैसे जैसे वेजिटेबल का टाइम बढ़ रहा है फ्रेशनेस कम हो रही है. नंबर ऑफ पीपल वर्किंग एंड द टाइम टू कंप्लीट द वर्क, अगर 4 पीपल हैं और टाइम 10 डेज है, अगर हम नंबर ऑफ पीपल ज्यादा कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. लाइक अनदर एग्जांपल, इंटरनेट स्पीड एंड टाइम टेकन टू डाउनलोड अ गेम. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इनवर्स proportion. Now come to unitary method. Proportions के examples करने से पहले we need to understand what is unitary method. So it is a method that involves finding the value of one unit. Okay, one unit. एक यूनिट की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना, एंड देन यूजिंग द यूनिट वैल्यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी. अब एक यूनिट की अगर हमें पता है तो हमें उससे ज्यादा कितनी रिक्वायर्ड है? मोर देन वन, राइट? तो उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिटरी मेथड. तो इसका क्या मतलब है? कॉस्ट ऑफ मैनी अगर हमें दिया हुआ है, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें क्या दे रखा है? कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स. सो कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स क्या है? 875 है. हमें क्या करना है? एक बुक की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि यूनिटरी मेथड है तो हमें वी हैव टू फाइंड आउट द वन यूनिट कॉस्ट. सो कैसे हम निकालेंगे? तो जो ये 875 है, 875 है और 5 बुक्स की कॉस्ट है तो उसको डिवाइड कर देंगे. मींस 875 डिवाइडेड बाय 5 एंड it gives the value of unit cost. अब हमें कितनी? 8 बुक्स की कॉस्ट निकालनी है. तो we know the value of one book, so what we have to do? We have to divide it with the value of one book with multiply with 8. So this will gives the cost of 8 books. So cost of many से cost of one निकालने के लिए we have to divide, and cost of one से cost of many करने के लिए we have to multiply. Okay, let's take an example. 2 notebooks cost is ₹90. So the cost of 2 notebooks is ₹90. So what is the cost of one book? So this is the unitary method, means we have to find out the cost of unit, means one notebook.
So what is the cost of one notebook? What we'll do? We'll divide it. So 90 divided by 2, it means 45 rupees. So the cost of one notebook is 45 rupees. Now what we have to do? We have to find out the cost of 7 notebooks. 7 notebooks के हमें cost निकालने, तो what we'll do? We will multiply it. Means 45 multiplied by 7, it gives you 315 rupees. So 2 notebook cost we know. So we have to find out the 1 notebook cost, so we'll divide. And if you want to find out the cost of 7 notebooks, so we'll multiply. Clear है unitary method? So direct proportion अभी हमने पढ़ा कि if one quantity is increasing तो other is also increasing. So example में अगर हम देखें तो cost of 1 kg sugar is 36 है, तो unit cost दे रखा है हमें, तो हमने अभी unitary method किया. अगर हमें 1 kg sugar का cost is 36, तो cost of 3 kg sugar क्या होगा? We'll multiply 36 with 3. So it will be 108. Same way we can find out the cost of 5 kg and 8 kg of sugar because it is an example of direct proportion. So अगर हमने यहाँ देखा weight of sugar 1, 3, 5, 6, 8, 10 है, तो what we have to do? We have to multiply this unit cost with the number of or the weight of sugar. So 3 का 3 से multiply, 5 का 5 से multiply, 6 का 36 into 6, 8, 36 into 8 and so on. So x and y, because there are two terms, if we assume x and y, so if x and y are in direct proportion, तो x upon y equals to k, constant. और we can say अगर proportion दो हम अलग अलग ले तो x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर ये y को इधर और ये y1 को इधर ले जाए तो x1 y2 equals to x2 y1. So this is the formula for direct proportion. Whenever there will be a question which are questions which are related to direct proportion, you have to apply this formula x1 y2 equals to x2 y1, because x is directly proportional to y. If x is increasing, y will also increase. Inverse proportion. So what is inverse proportion? Two quantities may change in such a manner if one quantity increases, the other quantity decreases and vice versa. हमने पढ़ा कि अगर एक quantity increase होगी तो दूसरी quantity क्या होगी? Decrease होगी. Example भी हमने देखे थे पहले कि number of workers increases तो time taken to finish the job decreases, or if we increase the speed, the time taken to cover a given distance decreases. So these are the examples for inverse proportion. Means one quantity is increasing, so it impacts the other quantity and it is decreasing. So हमने example क्या लिया कि अगर speed in kilometer per hour walk कर रहे हैं तो 3 है किलोमीटर पर आवर, तो टाइम टेकन कितना लग रहा है? 30 मिनट्स. वहीं हम रनिंग कर रहे हैं तो स्पीड कितनी हो गई? इंक्रीज हो गई, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? डिक्रीज. तो 6 अगर स्पीड हो गई है किलोमीटर पर आवर तो टाइम टेकन विल बी 15 मिनट्स. मींस if it is increasing then this quantity is decreasing. अगर हम साइकिल पे हैं तो स्पीड अगेन इंक्रीज हो गई, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, तो टाइम टेकन और कम हो जाएगा, मींस 10 मिनट्स. बाय कार अगर हम है तो 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, तो टाइम टेकन क्या है? 2. तो by simply looking at this we can see कि अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है? डिक्रीज. सो हम कहेंगे x is inversely proportional to 1 upon y. अगर हम दो क्वांटिटीज ले रहे हैं तो x y equals to k और k क्या है? कांस्टेंट है. तो y1 and y2 are the values of y corresponding to the values of x1 and x2 of the x respectively. तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे कि x1 y1 equals to x2 y2 और x1 upon x2 equals to y2 upon y1. जबकि हमने डायरेक्ट में क्या लिखा था? x1 y2 equals to x1 x2 y1. सो ये डायरेक्ट का था. तो इनडायरेक्ट में क्या है? x1 y1 equals to x2 y2, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x प्रोपोर्शनल टू y है, इनडायरेक्ट में x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन y है. क्लियर है ये? तो वही चीज जो भी हमने पढ़ी है उसमें ये कंक्लूजन है कि जब दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम क्या कहेंगे? x प्रोपोर्शनल टू y. अगर दो क्वांटिटीज x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन वी कैन say कि x is inversely proportional to 1 upon y. And formula
is x upon y equals to k, or we can say x1 upon y1 equals to x2 upon y2. If two quantities are said to be in inverse proportion, then xy equals to k, and we can also write x1 y1 equals to x2 y2 और x1 upon x2 equals to y2 upon y1. So ये जो formulas हैं ये हमें याद रखने हैं to find out the solution for a particular given problem. अब हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है. लेट्स टेक अ फर्स्ट एग्जाम्पल. Cost of 5 meters of a particular quality of cloth is 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10, 13 meters of cloth of the same type. सबसे पहले तो identify is this an example of direct proportion और indirect proportion. अगर आपने ये identify कर लिया तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना. अब क्या है, क्लॉथ है 5 मीटर जिसका कॉस्ट ये दे रखा है, तो अगर आप कितना मीटर इंक्रीज करोगे तो क्लॉथ का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा. अगर क्लॉथ का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम, x1 upon y1 equals to x2 upon y2. तो हमने क्या बनाया, टेबल बनाई, x और y 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर एंड 13 मीटर. तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हमने लिखा. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज x मीटर एंड इट्स कॉस्ट इन रुपीज इज y. बिकॉज जो भी दिया है और निकालना है वी हैव टू राइट डाउन फर्स्ट. तो हमें क्या दिया है, 2 मीटर क्लॉथ की वैल्यू निकालनी है, 4 मीटर की निकालनी है, 5 मीटर की हमें दी हुई है, देन 10 मीटर की निकालनी है, देन 30 मीटर ऑफ क्लॉथ की वैल्यू निकालनी है. फॉर्मूला हमें पता है, ये एग्जांपल किसका है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि लेंथ ऑफ क्लॉथ इंक्रीजेस as the length of cloth increases, cost of the cloth also increases in the same ratio. तो x1 upon y1 equals to x2 upon y2. तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर्स क्या आएगा, ये किसके लिए आएगा, 2 मीटर क्लॉथ के लिए 84 रुपीज, 4 मीटर क्लॉथ के लिए 168 रुपीज, 5 मीटर की वैल्यू दी हुई है 210, 10 मीटर क्लॉथ के लिए कितना आएगा 420 एंड 13 मीटर क्लॉथ्स के लिए 546. तो 2 upon 84, 4 upon 168, 10 upon 420 एंड इन प्लेस ऑफ 5 210. तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. क्वेश्चन नंबर 2. An electric pole 14 meters high cast a shadow of 10 meters. ठीक है, फर्स्ट व्हाट इज गिवन, इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट 14 meters है एंड वो शेडो कितना दे रहा है, लेंथ का 10 meters का. फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 meters अंडर सिमिलर कंडीशन. सेम कंडीशंस है तो ट्री की क्या हाइट होगी कि वो 15 meters का शेडो कास्ट करे. सो पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. जितनी हाइट होगी उतनी शेडो की लेंथ होगी, ठीक है. तो ये एग्जांपल किसका हुआ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का. तो हम कैसे लिखेंगे कि लेट द हाइट ऑफ अ ट्री बी x मीटर एंड हमने टेबल बनाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ द शेडो. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 14 तो गिवन है हमें इलेक्ट्रिक पोल की, और वो शेडो कितना बना रहा है 10, एंड हाइट ऑफ अ ट्री है वी हैव टू फाइंड आउट विच इज x एंड कितनी शेडो बना रहा है लेंथ की 15 meters. सो ये हमने पहले चेक कर लिया कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि मोर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोर वुड बी द लेंथ ऑफ इट्स शेडो. सो फॉर्मूला क्या यूज होगा, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2. तो x हमने कितना रखा, x1 कितना है 14, y1 कितना है 10, x2 वी हैव टू फाइंड आउट एंड 15. तो जब ये होता है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, इस 15 को यहाँ ऊपर ले जाएंगे. तो x इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, 14 upon 10 into 15. When we'll solve this, so it will come 3 upon 2, 5 से डिवाइड करेंगे एंड इसको 7 से, तो 7 into 3, so x equals to कितना हुआ 21. so x की क्या वैल्यू आई 21, तो हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई 21 meters. और इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो हमने पहले किया हुआ है, x2 equals to y1 is to y2. ठीक है, तो दोनों तरीके हैं करने से, बट एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, उससे करेंगे तो बेटर रहेगा. Question number 3. 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. How long will it take if only 5 pipes of the same type are used? Now
कैन यू गेस विच टाइप ऑफ प्रपोर्शन इट इज? तो 6 पाइप्स है जिसको टाइम लग रहा है 1 hour 20 minutes. अगर कम पाइप होंगे तो टाइम कम लगेगा कि ज्यादा? ज्यादा. तो 6 पाइप्स दिस एंड 5 पाइप्स अगर हमने कम किए तो टाइम क्या होगा? ज्यादा. तो ये एग्जाम्पल है इनवर्स प्रपोर्शन का. सो कैसे लिखेंगे हम? लेट्स द डिजायर्ड टाइम टू फिल द टैंक बी x मिनट्स. तो हमने ये टेबल बनाई जिसमें नंबर ऑफ पाइप्स एंड टाइम के साथ किया. नंबर ऑफ पाइप 6 है तो टाइम लग रहा है 80 मिनट्स एंड नंबर ऑफ पाइप्स 5 है तो वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम. So lesser the number of pipes, more will be the time required by it to fill the tank. So it is an example of inverse proportion. तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रखी. फॉर्मूला क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन का? x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2. इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे तो x1 और y1 कितना है? 6 इंटू 80. x2 y2 कितना है? 5 इंटू x. तो ये वैल्यू यहाँ पुट करी. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू पुट दिस 5 इन डिनोमिनेटर. तो 80 इंटू 6 अपॉन 5. तो x की वैल्यू आई 96. So the time taken to fill the tank by 5 pipes is 96 minutes or in hours we can say 1 hour 36 minutes. तो हम देख सकते हैं 6 pipes को fill पाइप जो है टैंक फिल करने के लिए 1 hour 20 minutes लग रहा है, वहीं 5 pipes को 1 hour 36 minutes. Question number 4. If 15 workers can build a wall in 48 hours, तो how many workers will be required to do the same work in 30 hours? तो इस क्वेश्चन को हमें देख के लग रहा है कि it is an example of inverse proportion. Inverse proportion कैसे? क्योंकि 48 hours जो है 15 वर्कर्स मिलके कंप्लीट कर रहे हैं एक वॉल को, तो 30 आवर्स में ज्यादा वर्कर्स रिक्वायर्ड होंगे. ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम? लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड टू बिल्ड द वॉल इन 30 आवर्स बी y. हमने वही टेबल बनाना है नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स की. नंबर ऑफ आवर्स 48 आवर्स तो 15 वर्कर्स काम करें. अगर हमने नंबर ऑफ आवर्स रिड्यूस कर दिए तो वी नो दैट मोर नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड. सो मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स फास्टर विल दे बिल्ड द वॉल. So number of hours and number of workers vary in inverse proportion. So inverse proportion का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है? x1 y1 equals to x2 y2. और ये वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी y की? 24. So to finish the work in 30 hours, how many workers are required? 24 hours. Hope you understand this question. तो हमने क्या किया है इस वीडियो में? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लर्न किया है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए हैं. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो.